ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਰਿਵਰ ਗੰਗਾ, और दूजी है रिवर बैन, और तीजी है अपने कोल रामसर, और चौथी है सतलुज। सो ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਸੀਗੀ? that was ਕਾਲੀ ਬਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਨ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? that is ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਦੌਨ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਦੌਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਿਲ ਰਾਜਾਜ਼ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲਿਫ ਖਾਂ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਲ ਰਾਜਾਜ਼ ਐਂਡ ਆਲਿਫ ਖਾਂ। ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਐਂਡ ਹਿਲ ਚੀਫਸ ਔਰ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਦੌਨ ਹੈ ਇਹ 1691 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਿਲ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਦੌਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਿਲ ਰਾਜਾਜ਼ ਐਂਡ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਦੌਨ ਵਿਖੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1691 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੁਦ ਕਾਜ ਨਿਰਪ ਹਮੇ ਬੁਲਾਇਓ ਆਪ ਤਵਨ ਕੇ ਉਰ ਸਿਧਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਆਫ ਜੂਨ 1746 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਰੂਦੀਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
उस वेले हुक्म किया सीगा कि जिथे भी सिख दिखते ने उन्होंने मारिया जाए और सिखां नूं हरमंदर साहब दे एंट्री ना दी जाए और जिथे भी प्रोमिनेंट सिख दिखन उन्होंने अरेस्ट भी किया जाए। तो इस करके जिहड़ा सीगा उहदा गवर्नर जिहड़ा सीगा वो खत्री सीगा लखपत राय, उन्होंने अपॉइंट किया होया सीगा और सिख उस वेले भज के जंगलों के लुके हुए सीगे। एक लड़ाई दे विच लखपत राय दा भरा जसपत राय उहदी लड़ाई हुई सिखां दे नाल, जिहदे कि जस्सा सिंह आहलूवालिया ते होर नाल सरदार सीगे। उहदे जसपत राय की मौत हुई और जदों जसपत राय मारिया गया तो लखपत राय ने सौं खाधी कि मैं भी खतरी दा पुत्त नहीं जे सिखां नूं खत्म ना कर दियां। तो इस करके उन्हें जिन्ने भी सिख सीगे उन्होंने मारना शुरू किया और नाल सिखां नूं जिहड़ा सीगा उन्हें घेर भी लिया सीगा और कित्थे घेरिया सीगा उसने गुरदासपुर दे कोल जिहड़ा सीगा उत्थे घेरिया सीगा और उस नूं जिहड़ा सीगा उत्थे उन्हें हज़ारां सिख मारे जिन्हों कि असीं की कहंदे आ छोटा घल्लूघारा कहा जाता है। The entire kingdom of Maharaja Ranjit Singh was divided into how many provinces? महाराजा रणजीत सिंह ने अपना जो राजपाट सीगा उन्होंने किहड़े 4 इलाकों च वंडिया होया सीगा, किहड़े इलाके च वंडिया होया सीगा? सो इहदा जवाब है कि 4 इलाकों च वंडिया होया सीगा। वो 4 इलाके किहड़े-किहड़े ने असीं देखदे हां। एक तां है कश्मीर, एक है लाहौर, एक है पेशौर ते एक है मुल्तान। ये 4 सूबियां दे विच उन्होंने अपने सारे राजपाट तो वंडिया होया सीगा। यह तुसीं देखदे हो कि पाकिस्तान का बहुत वड्डा इलाका जिहड़ा अजकल पाकिस्तान दे विच है, कश्मीर वाला इलाका ते ये तुसीं देखदे हो कि यह सतलुज दरिया दे नाल नाल उहदे, क्योंकि 1809 जदों संधि हुई सीगी तां समझौता की होया सी अंग्रेज़ां दे नाल कि सतलुज तुसीं पार नहीं करना। सो ये सतलुज तो परले वाला जो सारा इलाका है तकरीबन ये सारे इलाके दे उत्ते महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया सीगा और उन्हें 4 सूबियां दे विच वंड दित्ता सीगा। और तुसीं ये भी देखदे हो कि यह इत्थे सिंध दरिया भी जांदा है तो सिंध नूं भी जिहड़ा सीगा इन्हां ने क्रॉस कर लिया सी। पहली वार यह होया सीगा कि किसी भी भारती राजे दा यह सिंध दे पार वाले पासे दे उत्ते भी कब्जा सीगा, क्योंकि इस तो पहला जो असीं देखदे हां कि सिर्फ 1008 दे विच आखिरी लड़ाई हुई सी जिहनूं बैटल ऑफ छछ कहा जाता है और उस लड़ाई दे विच मुहम्मद गजनी ने जयपाल जिहड़ा कि हिंदू शाही राजा सीगा उहनूं हराया सीगा और इस सारे इलाके दे उत्ते जिहड़ा सी उहने कब्जा कर लिया सीगा। उस तो पहला जिहड़ा सीगा अफगानिस्तान तक हिंदुस्तानी राजा का राज हुंदा सीगा, पर मुहम्मद गजनी ने उस राजे नूं हरा के जिहड़ा सीगा इह सारे इलाके दे उत्ते कब्जा कर लिया। और सन 1008 तो बाद पहली बार होया सीगा यह 1831 दे विच, असीं 1834 दे विच कि किसी हिंदुस्तानी राजे का अफगाना नूं हराया सीगा और इस इलाके दे उत्ते कब्जा कीता सीगा। सो यह गल थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तुहानूं पता होना चाहिए। और तकरीबन आपां ये भी जानते हैं कि रणजीत सिंह का राज सीगा 1,40,000 मील दा रकबा सीगा, माइल्स, यह किलोमीटर नहीं माइल्स। जे किलोमीटर करिए तो 2,34,000 किलोमीटर का तकरीबन यह इलाका सीगा जिहड़ा कि रणजीत सिंह की रियासत का पूरा इलाका बनता है। Which one of the following is the state tree of Punjab? शीशम जिहड़ा सीगा यह पंजाब का स्टेट ट्री है। टाली कहते हैं आपां इहनूं, टाली। टाली is the state tree of Punjab. Forest and Wildlife Minister of Punjab is फॉरेस्ट एंड अपना जंगलात का मिनिस्टर पंजाब का कौन है? ये ऑप्शन किहड़े ने? भगवंत मान, इंद्रजीत सिंह निज्जर, डॉक्टर बलजीत कौर और लालचंद कटारचक। सो इसका जवाब की है? लालचंद कटारचक इसका जवाब है, लालचंद कटारचक। पेंटापोटामिया वाज द नेम गिवन टू पंजाब बाय हूम ऑफ द फॉलोइंग? पंजाब नूं किसे वेले, पंजाब बेसिकली देखिया जाए तो ये बहुत ना रहे ने, क्योंकि जिहदे अंडर रहा उन्हें अपना नाम दे दिता इनू। और पंजाब जिहड़ा सीगा कदे पर्शिया दे अंडर रहा, कदे यह
ਹੂੰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਗਧ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਪਾਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ, ਪੈਂਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪੋਟਾਮੀਆ ਨਦੀਆਂ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਸਿਕੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੰਚਨਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਣਿਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਕ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਡ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੋਰੋਕੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 1320 ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। In winters the cold winds causing frost over Punjab originate from, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ, ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ, ਤੁਰਕਮੈਨੀਅਨ ਸੀ ਐਂਡ ਬੋਥ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸਟਰਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੀਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਬਾਏ, ਗ੍ਰੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਕਾਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਸ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬੁੱਕਸ? ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਔਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। Which of the following is not a nose ornament? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੱਕ ਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਂਗ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੁੰਮਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੱਕ ਦਾ ornament ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੁੰਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਟਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਫੁੰਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੰਮਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ
नीचे ना धागे जे लटके हुंदे ने तां इहनूं फुमनी कहा जाता है। ऑन द ग्लोब पंजाब इज एट ए लॉन्गीट्यूड ते लैटीट्यूड पंजाब दे किहड़े हैगे ने ये सानूं पता होना चाहिए। सो बेसिकली ये 29 30 32 32 जे सीगे ये पंजाब दे लॉन्गीट्यूड ते लैटीट्यूड ने। फेलियर ऑफ सिंह सभा मूवमेंट लैड टू ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ मूवमेंट 1920-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ। हाँ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਮੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਥਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤਰੋਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Who was the Governor General of India at the time of first Anglo-Sikh War? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਵਾਰ 1845-46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ, ਵੈਲਸਲੇ, ਕਰਜ਼ਨ ਤੇ ਬੈਂਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਵੈਲਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਲਿਆ। ਕਰਜ਼ਨ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟੂੰਡੇ ਲਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਟੂੰਡੇ ਲਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੌਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਊ ਗੌਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਲੀਅਮ ਗੌਫ ਦੇ ਹਿਊ ਗੌਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਟੂੰਡੇ ਲਾਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੂੰਡੇ ਲਾਟ। Which city is known as Paris of Punjab? ਪੈਰਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਏ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ was sung for which historical movement in ਪੰਜਾਬ? ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 1907 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 1907 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈਂਡ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਅਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਔਰ ਬਾੜੀ ਦੌਬ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਨੇ
ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 1907 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਲਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। The kharif crops are sown in which months? ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਖਰੀਫ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਰੀ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਟਾਈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ? ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਖਰੀਫ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। which are the following? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਨਾਸਰ ਗਾਰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਨਾਸਰ ਗਾਰਡਨ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ दोबारा इन्होंने याद भी रखोगे ताकि एग्जाम दे थोड़े कम आ सकन। थैंक यू। चलिए, हेलो क्लास, आज हम लोग आगे के अपने जीके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे सैटरडे के मॉक टेस्ट में रहे हैं उसके अराउंड के क्वेश्चंस भी देखेंगे क्लास, उसके आसपास के भी क्या क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। चलिए ठीक है, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज। क्वेश्चन आपको साइंस की टर्म से पूछा गया है कि हीलियम के अंदर आपके क्या कंटेंट रहता है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो आपको 2 प्रोटॉन और आपको 2 यहां पर क्या मिलते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, हम लिखते कैसे हैं हीलियम को, He2 ठीक है, तो आपको वो बता रहा है कि आपके पास 2 प्रोटॉन है और 2 आपके पास क्या चले जाएंगे, न्यूट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखने, कई बार ऐसे एलिमेंट्री बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोजन का आता है, लिथियम का बड़ा कॉमन रहा है, सोडियम, कई बार सोडियम पॉजिटिव का पूछा जाता है। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर सोडियम पॉजिटिव है तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो कैटायनिक अनायनिक फॉर्म में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास, तो आपको ये याद रखना है। पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है तो क्लास 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप उसको भी से 1 माइनस कर सकते हो। अगर नेगेटिव का साइन है तो उसमें 1 ऐड ऑन कर देना, गेन करवा देना, 10 के 11 कर देना, और अगर 10 है, एक आपके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव का चार्ज आया तो उसको 9 कर देना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। चलिए, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम। ठीक है, जगजाहिर बात थी कि आपके रंजीत सिंह जी ने कोहिनूर डायमंड एक्वायर किया था और वो अपने बाजू में उसको पहना करते थे। ठीक है, तो जो ऑर्नामेंट उन्होंने यूज किया था अपने बाजू के लिए किया हुआ था। सो क्वेश्चन ये है कि इनको मिला कहां से। ठीक है, तो ही गॉट इट फ्रॉम द शाह सूजा। ठीक है, शाह सूजा दुरानी जो कि उस समय आपके अफगानिस्तान के दौरान हुआ करते थे, वहां के राजा हुआ करते थे, इनसे इनको मिला था। ठीक है, कंडीशन ये थी कि इनको छुड़वा कर लाए थे और बदले में इनके जो रानी है उनसे कोहिनूर डिमांड किया था आपके रंजीत सिंह ने कि हम उनको छुड़वा के लाएंगे और आप बदले में हमें कोहिनूर देंगे। कोहिनूर की जर्नी कई बार पूछी जाती है क्लास। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसका सबसे पहले देखते हैं तो ये सबसे पहले एक्वायर किया था मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, काकात्या वंश के जो राजा थे रुद्र प्रताप, उन्होंने वो गिफ्ट किया था जब मलिक कफूर ने इस एरिया को कॉन्कर किया था, जब उन्होंने साउथ की कैंपेनिंग की थी। इसके बाद ऐसा माना जाता है क्लास के इतिहास में थोड़े समय के लिए ये गायब है, किसी के राजा के पास कैसे गया है इसके एक्चुअली कहीं प्रॉपर एविडेंसेस नहीं आ पाते हैं। ठीक है, काफी सारी स्टोरीज इसके अराउंड चलती हैं। देन इसका मेंशन आपके पास बाबर और आपके हुमायूं के पास आता है। देन टू द जहांगीर, अकबर के पास से मिसिंग दिखाई देता है जहांगीर और फिर आपके शाहजहां। ठीक है, देन कैरिड फॉरवर्ड, नादिर शाह इसको ले जाते हैं भारत से। क्वेश्चन पूछा था कि कोहिनूर ले जाने वाला शख्स कौन है भारत से, दैट इज नादिर शाह। ठीक है, एक दरियाए नूर है वो भी उनके पास है, ईरान के पास है। ठीक है,
आपके नादिर शाह से ये किसके पास जाता है? अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान के पहले दुरान बनते हैं, फिर उनके जो सक्सेसर हैं आगे शाह सूजा, इनके पास आता है। फिर ये इंडिया वापस आता है टू द पंजाब किंगडम रणजीत सिंह, और फिर लॉर्ड डलहौजी इसे रानी को गिफ्ट कर देते हैं इन द 1853-54। चलिए ठीक है क्लास। नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्टैटिक क्वेश्चन है क्लास। कई बार पूछे जाते हैं कि भारत का पहला फीमेल स्पीकर कौन है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो आप देख सकते हैं जो पहला आपके पास लिखा हुआ है सुचेता मीरा कुमार, ये आपके पास कांग्रेस के समय में थी और ये पहली आपके पास महिला स्पीकर रही है लोकसभा की। सुचेता कृपलानी, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी क्लास, उत्तर प्रदेश की। ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि आपके पंडित नेहरू जी की भी बहन है, ये यूनाइटेड नेशंस में जाने वाली भी भारत की तरफ से पहली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी। सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली फीमेल गवर्नर रही है किसी भी स्टेट की, दैट इज टू द उत्तर प्रदेश अगेन। तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्टैटिक डाटा है, फीमेल फर्स्ट इन द इंडिया, हाई कोर्ट की कौन जज रही है, सुप्रीम कोर्ट में कौन गई है, फर्स्ट फीमेल में आपको मिस इंडिया कौन बनी है, पहली फाइटर पायलट कौन रही है, फर्स्ट इन द फीमेल कैटेगरी। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दीज क्वेश्चंस, पूछे जाते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which schedule of the Indian Constitution of the Indian contains special provisions of the administration and control of scheduled area in several areas? आपका भारत के संविधान में जो स्केड्यूल्स अनुसूचियां लिखी गई हैं, जो 12 अनुसूचियां लिखी गई हैं, उसमें से किस स्केड्यूल में आपको एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में बात की गई है? स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और एरियाज की, जो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जातियां हैं, उनके लिए प्रोविजंस कहां मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो वो कहां पर मेंशन किए गए हैं? 5th शेड्यूल में। क्लास 6th शेड्यूल में आपको यही कंसेप्ट 4 स्टेट्स के लिए दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्लास आपको कि 6th शेड्यूल स्पेसिफिकली किन स्टेट से डील करता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट्स इसके अंदर है। पहले इसमें अरुणाचल प्रदेश थी, वो बाहर जा चुकी है अब। ठीक है, 4 स्टेट्स जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल आपके 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है, ये आपकी 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए आपके पास 5th शेड्यूल चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? स्टैंडर्ड मेरिडियन का यहां पर क्लास मतलब हो जाएगा कि हमारा जो टाइम जोन है वो कहां से चल रहा है, कितने डिग्री पर हमने टाइम जोन लिया हुआ है। जैसे कि 0 डिग्री हमने स्टैंडर्ड मानना हुआ, जो कि लंदन से पास करता है, जिसे ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है। उसकी बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री पर हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, दैट इज एंटीपोडल पॉइंट। ठीक है, भारत को अगर हम नक्शे पे देखते हैं क्लास, तो ये 0 डिग्री है, यहां पर आपका कंसाइड पॉइंट होगा 180 डिग्री का। इंडिया ने अपना लैटिट्यूड यहां पर लिया हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में हम लोग क्लास। ठीक है, ये भारत की पोजीशन हो जाती है आपके पास जब मैं इसको देखता हूं। ठीक है, तो ये मेरा भारत हो जाता है। तो यहां से आपकी स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड पास करती है, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। जिस जगह से पास करती है वो जगह है आपके पास शंकरगढ़ फोर्ट, शंकरगढ़ फोर्ट, मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर से ये पास करती है शंकरगढ़ फोर्ट 82 डिग्री। पहले नैनी इलाहाबाद से था, तो 5 घंटे 28 मिनट का फर्क था लंदन और हमारे बीच में। अब एग्जैक्टली 5 घंटे और 30 मिनट का, पहले कई बार थोड़ा राउंड ऑफ का चक्कर पड़ता था, तो वो 2 मिनट का जो गैप था हमने पूरा कर लिया। अभी मिर्जापुर से एग्जैक्टली हम जब देखते हैं तो लंदन और मिर्जापुर के बीच में एग्जैक्टली 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं मिर्जापुर नहीं कहूंगा, पूरे भारत को एक जैसा लेकर चलते हैं, एक ही स्टैंडर्ड टाइम में हमारे पास 2 नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्लास। विच ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? भारत में सबसे बड़ भारत इंसान के जो शरीर है, इसकी सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो आपके पास कौन सी है? लीवर है। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर भी आपकी बॉडी में जिसकी होती है वो लीवर की होती है क्लास, ये भी आपको याद रखना है। और मिनिमम रीजनरेशन पावर किसकी होती है? ब्रेन की। ठीक है, ब्रेन बहुत जल्दी थक जाता है। आप कई बार खा के भी खा लेते हो ना, तो लीवर को पचाना होता है तो कहीं ना कहीं पचा लेता है, खा के भी खा लेते हैं हम बहुत जल्दी, लेकिन ब्रेन की रीजनरेशन पावर कम होती है। हम कई बार देखते हैं ना, जब पढ़ने बैठते हैं तो 40-45 मिनट में दिमाग थकना शुरू हो जाता है, तो उसकी सेल्स की रीजनरेशन पावर थोड़ी सी क्या होती है? कम। और मैक्सिमम किसकी होती है? लीवर की ही होती है आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द हु इज द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन? ठीक है, पेनिसिलिन जो आपके पास है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? स्टैटिक क्वेश्चन है क्लास, आंसर विल बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? ठीक है क्लास, एक्चुअली क्या होता है कि हम जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको एक्वायर नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखते हैं कि द ऑरेटिकली द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जो लैब के अंदर हम लोएस्ट टेम्परेचर को एक्वायर कर लेते हैं वो आपके पास किसको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। एज पर द माय नॉलेज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लिक्विड आपके पास नाइट्रोजन का टेम्परेचर जो हमने सबसे मिनिमम लिया हुआ है, ये -188 डिग्री तक जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है उसके बाद ये। ठीक है, ये बात को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि किस मटेरियल का हमने सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैलकुलेट किया हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका आंसर आपके पास लिक्विड नाइट्रोजन होता है क्लास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आने वाली टेक्नोलॉजी इसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी। चलिए जी, मनी बिल इज एक्सेप्टेड इन लोकसभा, राज्यसभा हैज टू विदहोल्ड इट मैक्सिमम अप टू। अगर लोकसभा ने आपके मनी बिल को पेश किया है, उसको पास कर दिया है, तो राज्यसभा के पास कितने दिन की अवधि, कितने दिन का समय होता है इसको पास करने का? तो आंसर कितना है? 14 डेज। 14 डेज से ज्यादा इसको नहीं रखा जा सकता। फर्दर राज्यसभा ने जो रिकमेंडेशंस दी है, लोकसभा उसको मानती है या नहीं मानती है, उसके लिए वो बाध्य नहीं होती, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, दे आर नॉट बाउंडेड बाय द डिसीजंस और रिकमेंडेशंस गिवन बाय द राज्यसभा, वो हम उसके लिए फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हु सक्सीडेड द औरंगजेब आफ्टर द डेथ ऑफ इन द 1707 AD। 1707 में जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद सक्सेसर कौन बनता है, गद्दी पर कौन आता है? दैट इज योर बहादुर शाह प्रथम। शाह आलम प्रथम का भी टाइटल लिया था। इन इतिहासकारों ने शाह बेखबर भी लिखा था क्लास, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शाह बेखबर, दुनिया जहान की आप ये कह के चलो कोई खबर ही नहीं है कि क्या चल रहा है दुनियादारी में। मराठाओं के साथ संधि हुई, आपके सिखों के साथ संधि भी इन्हीं के समय पे हुई। तो पिताजी ने जो इतना बड़ा साम्राज्य बना के दिया था उसको मिट्टी करने में इन्होंने कोई ज्यादा समय नहीं लगाया। ठीक है, तो इतिहासकारों ने शाह बेखबर का टाइटल भी दिया था क्लास। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास की सिखों के साथ मराठाओं के साथ संधि किसने की थी? वो आपके साथ एक क्वेश्चन आता है कि सरदेश मुख, जो टैक्स कलेक्शन करने की पावर थी मराठा, उसकी अपनी टेरिटरी के बाहर जाकर भी, ठीक है, उसका राइट किसने दिया था मराठाओं को? दैट वाज बाय द बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, चलिए जी, हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? नन अदर देन द हैदर अली। पहले एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर विजेता कौन रहे थे? आपके हैदर अली। अपने डिप्लोमेटिकल पॉलिसीज के लिए बड़े फेमस थे। अंग्रेजों ने 3 सेनाओं को इकट्ठा किया, मराठाओं की, हैदराबाद की और अपनी खुद की, लेकिन रिजल्ट ये निकलता है कि आपके टीपू सुल्तान और हैदर अली कामयाब रहते हैं मराठाओं को तोड़ने में, उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। युद्ध का नतीजा बड़ा जबरदस्त निकलता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। ये सबसे ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज में से एक मानी जाती है जो ब्रिटिशर पे इंपोज की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ट्रीटी ऐसी जो सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटेड रही है ब्रिटिशर्स के लिए? तो वो ट्रीटी ऑफ मद्रास थी आपके पास आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, चलिए, वेयर इज द लोकतक लेक सिचुएटेड? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? लोकतक लेक आपके पास कहां पर है? दैट इज इन द मणिपुर। वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये आपके पास, आपको याद रखना है। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये आपके पास। ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, उसका नाम क्या है आपके पास? काइबुल लैम्जो। ठीक है, नाम क्या है? काइबुल लैम्जो इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, जहां पर आपका ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क बनाया गया है। ये लोकतक लेक के ऊपर है, दैट इज इन द मणिपुर। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है क्लास, बहुत बार पूछा जाता है ज्योग्राफी के पर्सपेक्ट से। ठीक है, लोकतक लेक। नेक्स्ट, द इंस्पिरेशन ऑफ द लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम? अन नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है क्लास। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में जब से पेपर लेने शुरू हुए हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस टिल द मोमेंट किसी सरकार ने या किसी पेपर बनाने वाले ने ये क्वेश्चन ना पूछा हो। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका आंसर है, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, लिबर्टी मतलब आप एक ऐसी विचारधारा के साथ चल रहे हो जो बहुत ओपन है, उदार है। ठीक है, इक्वालिटी समानता की बात हो रही है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे की बात हो रही है। तो ये सारा कुछ कंसेप्ट आपने कहां से लिए हैं? फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। एक क्वेश्चन पूछा था कि सोशलिज्म की थ्योरी हमने कहां से उठाई है, फिर आपका आंसर हो जाएगा रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, अगर पेपर में इन वर्ड्स के अलावा अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि सोशलिज्म की थ्योरी हमने कहां से उठाई है, तो सोशलिज्म की थ्योरी हमने कहां से उठाई है? आपके रशियन रेवोल्यूशन से। ठीक है, समाजवाद। चलिए,
द प्राइम मिनिस्टर आर द रेप्लिका ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट बेसिकली इन द बोरोड फीचर कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, दैट इज फ्रॉम द ब्रिटेन, ठीक है। प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहां से ली है क्लास, यूएसए से। लेकिन प्रेसिडेंट एज अ नॉमिनल हेड, काम नहीं है ना बेचारे के पास, ज्यादातर काम प्राइम मिनिस्टर की पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। ये हमने कहां से उठाया, यूके से, ये याद रखना है। दो डिफरेंट क्वेश्चन है क्लास। अगर सिंपल यूएस प्रेसिडेंट की पोस्ट पूछी जाती कि प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहां से ली, तो आंसर क्या होगा, यूएस से। लेकिन प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड की तरह काम करता है, जैसे इंग्लैंड में रानी करती है, तो ये हमने कहां से कंसेप्ट उठाया है, यूके से उठाया। तो दो डिफरेंट चीजें एक ही पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। उसकी पावर्स यूके से ड्राइव होती हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट कहां से ड्राइव होती है, आपकी यूएसए से, ठीक है। तो यूके और यूएसए दो आंसर है इसके अंदर। चलिए, यहां पर आंसर ब्रिटेन था प्राइम मिनिस्टर के लिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर गारंटेड, ठीक है। आर्टिकल 29 एंड 30। क्लास ये तो आपको रट्टे मारने पड़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स मत छोड़ना, कोशिश करो वैसे तो समझने की, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको लगता है कि नहीं क्लियर हो रहा है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, हमने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वीडियो बना के डाली भी हुई है। बट आपको ये याद जरूर करने पड़ेंगे कि क्या कहते हैं, इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो कल्चर और एजुकेशन राइट आपके आर्टिकल नंबर 29 और 30 में है। आर्टिकल 29 जहां आपके माइनॉरिटीज के राइट्स बताता है, ठीक है। दूसरी तरफ आपको आर्टिकल नंबर 30 में माइनॉरिटीज को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो है प्रिजर्व करने की बात की जाती है। तो पहला राइट आपको कल्चरल और एजुकेशनल राइट बता रहा है आपका, ठीक है, जिसके अंदर आपके प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आ जाता है 29 में, और 30 में आपको माइनॉरिटीज को राइट दिया जाता है कि वो कोई भी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए क्लास, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ एन इंडियन सिटीजन इज डीम्ड अ पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज डिनाइड टू हिम। अगर सपोज करो किसी व्यक्ति को उसके धर्म के अनुसार किसी तरीके के सरकारी नौकरी नहीं मिलती, आप बैंक पीओ का पेपर देने जाते हो, आपको धर्म विशेष कहकर वो आपको नौकरी नहीं देते, तो आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो देखो अब कंसेप्चुअलाइजेशन आ गई, ठीक है। अगर आपको नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता लगेगा आंसर। तो चलो यहाँ पर मार्क्ड आपको इजीली दिख गया कि इक्वालिटी है। आर्टिकल नंबर पूछ ले कोई कि आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर है 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ऑफ रेस, कास्ट, पब्लिक एंड सेक्स। प्लस इसी में आपको जो इंप्लॉयमेंट है वो आर्टिकल नंबर 16 के तहत मिलती है। 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो यहां पर बात हो रही है। आर्टिकल 16 कहता है कि आर्टिकल 15 के अनुसार किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो सकता, धर्म, जात पात, किसी कौम के नाम पर, किसी के मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या जहां पर आपका जन्म हुआ उसके अनुसार, ये इंप्लॉयमेंट पर भी लागू होता है। तो आर्टिकल नंबर 16 की वायलेशन है, आर्टिकल नंबर 15 की वायलेशन है अंडर द कैटेगरी ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the first woman to become the Prime Minister of India? देखो मैंने कहा था स्टैटिक क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे जाते हैं, तो ये तो जग जाहिर बात है कि भारत की पहली महिला जो राष्ट्र प्रधानमंत्री रही है, नन अदर देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, दैट इज इंदिरा गांधी जी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। चलिए ये आपको याद रखना है कि श्री वनो जो बंद्रा नायके हैं, ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी, दैट इज ऑफ द श्रीलंका, ठीक है। फर्स्ट आपके पास फीमेल प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुस्लिम मुल्क की आपके पास जो रही है वो बेनजीर भुट्टो रही है टू द पाकिस्तान। तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लिया करो क्लास, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इफ द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड इन द स्टेट, वो कहता है कि अगर हमें राज्य के अंदर 356 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाना हो, स्टेट इमरजेंसी लगानी, तो प्रोविजंस क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर ना कई बार आपके जो कंसेप्चुअलाइजेशन आती है ना क्लास, वो हमें समझनी पड़ती है। मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूंगा, उसको ध्यान से देखते हैं। पहला वो कहता है कि बिल इंट्रोड्यूस हुआ स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन लेजिस्लेचर से डिफीट हो गया, है ना, लेजिस्लेचर में पास नहीं हुआ, तो क्या सरकार गिर जानी चाहिए। देखो, अगर प्रेसिडेंट ऑन द रिसिप्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज सेटिस्फाइड दैट सिचुएशन इज लाइकली टू राइज व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर को गवर्नर चिट्ठी लिखता है प्रेसिडेंट को कि भाई अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार नहीं चल रही है, क्या इस दरमियान ऐसा हो सकता है, क्लोज ऑप्शन है। फिर वो कहता है द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन फ्रॉम द व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
क्लास थोड़ा क्लोज ऑप्शन है, जरा ध्यान देखो, बस और अदरवाइज लिखा हुआ है। ये नहीं जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, गवर्नर की तरफ से हो, अगर उनको अपने आप भी लगता है तो भी वो कर सकते हैं, ठीक है। When the governor and the chief minister of the state differ on many matters, ये तो सारा दिन होता ही है। मुझे तो सास बहू की जोड़ी लगती है जब मैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को देखता हूँ, किसी की नहीं बनती, आपस में बड़ा रेयर केस होता है। तो वो कहता है अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा क्लास, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सी। अदरवाइज उसमें मेंशन नहीं था पहले केस के अंदर, अदरवाइज मेंशन होना बहुत जरूरी था, ठीक है। अपने आप में भी ये कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, द स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। वो कहता है अगर मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना, इंपीच करना है, तो क्या प्रोसेस है, तो वही प्रोसेस है जिस ग्राउंड पे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, ठीक है। इसका जो ग्राउंड है हमारे पास, वो ग्राउंड आपके पास क्या बनता है, ठीक है। ग्राउंड क्या बनेगा, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी का आपके पास ग्राउंड है, जिसकी बेसिस पर आप उसको क्या कर सकते हो, इंपीच कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस। भारत में पहली बार पंचायती राज कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ, राजस्थान में। डेट याद रखनी है क्लास आप लोगों को, 2 अक्टूबर 1959। महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत में आपके पास पंचायती राज होने चाहिए, तो उन्हीं के जन्म दिवस पे नागौर डिस्ट्रिक्ट है आपके राजस्थान में, जब इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, The first ever Indian-Russian 2+2 ministerial dialogue is held in the New Delhi, which of the two ministers from the both countries took part in the meeting, ठीक है। 2+2 यानी कि दो यूनियन मिनिस्ट्री उनकी आपस में बातचीत करेगी, ठीक है। तो 2+2 डायलॉग बोला जाता है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्ट्री का टॉक्स था, ठीक है। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय इनके बीच में डील थी, और इस डील के अंदर काफी सारी डिफेंस डील्स भी आपको देखने को मिली है, ठीक है। रशिया के साथ हमारे काफी अच्छे टाई अप हुए हैं इकोनॉमिकली, जब ऐसे हमने यहाँ पर रुपए लॉन्च करने की बात की है, हमने यूपीआई लॉन्च करने की बात की है, तो इट्स अ बिग प्लस पॉइंट फॉर अस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द 11th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवेरन, ये आपके पास किन दो कंट्रीज के बीच में हुई है, दैट इज इंडिया एंड मालदीव्स। ये आपको जस्ट एज इट इज याद रखना है, 11th एडिशन था आपके पास ये, ठीक है, एक्यूवेरन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विनोद दुआ, जो कि अभी रिसेंटली 4 दिसंबर को पास हुए न्यू दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर, ये किस से जुड़े हुए हैं, टीवी जर्नलिस्ट, ठीक है। विनोद दुआ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपने कौन सी चीज इनकी बार बार ऑन द टीवी पे देखी होगी। बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स के साथ काम किए, लास्ट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एनडीटीवी के साथ भी बड़े लंबे समय तक जुड़े रहे। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस एक खास प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, जो हम सबकी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा भी रहे हैं। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माउंट सुमारो, जो कि अभी बहुत टॉलेस्ट माउंटेन है, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है बेसिकली, ये सडनली इरप्ट किया है। ये आपके पास कौन सी कंट्री में आता है, दैट इज इंडोनेशिया। देखो क्लास, क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, वॉल्केनिक इरप्शन क्या होती है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, लेकिन करंट अफेयर में पूछा गया है, ठीक है। सडनली इरप्ट कर गया माउंट सुमेरु, दैट इज योर इंडोनेशिया। चलिए, डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव द 100% कोविड वैक्सीनेशन ऑफ द सेकंड डोज फॉर द एंटायर एलिजिबल पॉपुलेशन। भारत की पहला ऐसा राज्य जिसने पूरा 100% अपनी सेकंड डोज कंप्लीट किया एलिजिबल लोगों के लिए, वो आपके पास कौन सी बनी है, आपकी हमारी अपनी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए जी, विच साइक्लोन कॉज्ड हैवी रेन्स अक्रॉस द कोस्टल रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा ऑन December 5। 5 दिसंबर को एक चक्रवात आंध्रा और उड़ीसा के तट से टकराता है, और उसको नाम क्या दिया गया था, जवाड़, ठीक है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, जवाड़, इसको नाम दिया गया है क्लास। और बहुत लंबे समय से आप देख रहे हो भारत में साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। और आजकल इंडियन ओशन वैसे ही बहुत ज्यादा साइक्लोन बनने लग गए हैं, क्योंकि इंडियन ओशन का टेम्परेचर बढ़ चुका है क्लास, जिसकी वजह से आपको दिखता है कि चक्रवात ज्यादा बनते हैं आपके पास, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है, रीजन यही है क्योंकि हम लोग जिस जोन में बिलोंग करते हैं वहां पर ये सब चीजें बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, ठीक है। टेम्परेचर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स इसकी वजह रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, विच कंट्री वन द जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल ऑन द December 5। आपके मेंस हॉकी वर्ल्ड कप December 5 को जिस कंट्री ने जीता है, दैट इज योर अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन विच 14 सिविलियंस की डेथ हो गई क्लास 4 और 5 दिसंबर को, जब ट्राइबल और भारतीय जवान के जो 21 पैरा के स्पेशल फोर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बहुत दर्दनाक हादसा था क्लास, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स का जो हिसाब किताब है वो एक कॉमन आदमी को देना पड़ जाता है। तो आंसर इसका क्या था आपके पास, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के अंदर ये हुआ था आपके पास।
चलिए जी, हु वाज क्राउन्ड द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल चैंपियन फॉर द सेकंड सक्सेसिव टाइम इन द 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप? तो आपके पास नन अदर देन मनु बाकर। इस बार ये कॉमनवेल्थ से मिसिंग रही हैं, शूटिंग का इवेंट नहीं था, वरना ये मेडल्स ला सकती थी। गोल्ड मेडल की बड़ी जबरदस्त प्रावेदार थी ये। ओलंपिक में भी बड़ी उम्मीद थी, बट आपके वेपन्स आपका साथ नहीं देते कई बार। चलिए जी, पीवी संधू जिन्होंने गोल्ड मेडल लॉस्ट किया था एनसी युंग, जो कि साउथ कोरिया की फाइनल में वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड जो फेडरेशन आपके पास है, वर्ल्ड टूर फिनालिस्ट जो बाली में हुआ, ठीक है। तो सिल्वर मेडल आया था आपके सिल्वर पीवी संधू जी का, और जिसको इन्होंने जिनसे ये हारी है दैट इज एन सियोंग। ये कहां से बिलोंग करती हैं? आपकी साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। चलिए ठीक है क्लास, दिस इज द सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन से कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इन पजल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पजल्स। क्या कहा है? इन अ फैमिली ऑफ 6 देयर आर 3 men LM and N and 3 women। ठीक है जी। The 6 are architect, lawyer, CA, professor, doctor, engineer by profession but not in the same order। ओके, ये क्या है? ब्लड प्लस पजल का मिक्सचर चल रहा है। ठीक है जी। हाँ जी, हमें बता दिया टोटल 6 लोग हैं। की दस्या टोटल 6 लोग हैं, जिहदे विचों 3 मैन है ते 3 की है फीमेल है। ठीक है जी। हाँ जी, देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 अनमैरिड। N is not R's husband। जो N है वो R का हस्बैंड नहीं है। ठीक। द डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर। डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर। आर्स ग्रैंडफादर इज प्रोफेसर। कोई आर है जिसके ग्रैंडफादर प्रोफेसर है। ठीक। आगे, M is not L's son nor he is architect or professor। ठीक है जी। M जो है वो L का सन नहीं है, सन नहीं है। ना ही नॉर ही इज, ना ही M आर्किटेक्ट है ना ही प्रोफेसर है। द लॉयर इज टी's डॉटर इन लॉ। लॉयर डॉटर इन लॉ है टी की, मतलब मेल हुआ। ठीक है जी। ग्रैंडफादर कौन है? प्रोफेसर। ठीक है जी। एन इज टी's सन। एन टी का सन है एंड द इंजीनियर्स फादर, इंजीनियर का फादर है। एल इज मैरिड टू सीए। 2 मैरिड कपल है, यहां पे ग्रैंड पेरेंट्स भी आ रहे हैं। एल मैरिड है किससे? एल मैरिड है सीए से। यहां पे तो एल नहीं आ सकता, ये आ गया सीए। नहीं, हमें जेंडर नहीं पता यहां पे एल और टी। एल का क्या जेंडर है? मेल है, तो सीए क्या हुई? फीमेल हुई। ठीक है जी। एन क्या है? मेल है, राइट। आगे, एल इज मैरिड टू सीए, ये वाली लाइन हो गई। यहां पे इंजीनियर हो गया, लॉयर वाली लाइन हो गई। आगे हमें क्या बोला था? एम इज नॉट एल्स सन। अब मेरे पास क्या क्या बचा? क्या क्या फिल हो गया? सबसे पहले टी फिल हो गया, एल फिल हो गया, एन फिल हो गया। ठीक है। आर और एस बचे हैं, आर और एस बचे हैं। एन आर का हस्बैंड तो नहीं है, तो किसका हस्बैंड होगा? एस का। एस भी फिल हो गया। अब बचा क्या? एक तो आर बचा और एक एम बचा। एम जो है वो सन नहीं है। ठीक है, आएगा तो एम यहीं पे। ठीक है। हाँ जी, ये सीए हो गया, डॉक्टर फिल हो गया, और क्या फिल हो गया? लॉयर फिल हो गया। यहां पे सीए फिल हो गया, इंजीनियर बचा, प्रोफेसर बचा,
और आर्किटेक्ट बचा। ठीक है जी, तो एम जो है वो इंजीनियर है, यहां पे बचा आर। आर क्या है? विमेन है। ठीक है जी, अब मेरे पास क्या बचा? आर के ग्रैंड फादर प्रोफेसर थे, तो यहां पे आया प्रोफेसर, प्रोफेसर भी गया, ये क्या बचा? आर्किटेक्ट। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। करेक्ट पेयर्स ऑफ मैरिड कपल कौन है? एलटी और एनएस। एलटी एनएस। जो दो लोग अनमैरिड नहीं है वो बताना मुझे, कौन नहीं है? आरएम। कौन नहीं है? आरएम नहीं है। ठीक जी, हाँ जी। आर्किटेक्ट कौन है? अब ये हमें पता चल जाएगा कि आर्किटेक्ट कौन है। आर था, पजल को सॉल्व करके। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या हो रहा है यहां पे? चेयर इज रिटन एज EGCHS। क्या हो रहा है? पोजीशन वैल्यूज लिखो, उसके बाद डिफरेंस देख लो। यहां पे +2 -1 +2 -1 +2 -1। हमने भी क्वेश्चन में क्या करना है? +2 -1। हाँ जी, कर लांगे। +2 -1 का काम आपा +2 -1 P 16 +2 16 +2 18 दैट इज R। R Q वाली ऑप्शन होनी चाहिए। हाउ इज, अच्छा उल्टा पूछा गया, हाउ इज प्रूफ रिटन इन दैट कोड? नहीं ठीक है, प्रूफ रिटन इन दैट कोड उल्टा पूछ लिया। प्रूफ किवें लिखा जाता है? दैट कोड विच, है ना। की करांगे इत्थे +2 -1 Q, तो आंसर की बनूगा? नन ऑफ दिस। आंसर क्या आना चाहिए? नन ऑफ दिस, है ना। आगे देखो कि क्या गया, आपन क्या गया? विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल। ठीक, हाँ जी, थर्ड नंबर उस लेफ्ट दे जो कि एग्जैक्टली मिडल च आ रहा है। जो आप काउंट करांगे टोटल 27 नंबर है, जिस दे विचों एक मिडल वाला नंबर जिहदे 13 नंबर इधर है, 13 इधर ते 14वां की आऊगा? 9। इधर राइट इधर लेफ्ट। 1 2 3 केड़ा आया? 4। क्लियर। नेक्स्ट ऑड वन आउट दसना है। बाकी सारे वॉल्यूम नू मेजर करते हैं, राइट। तो अपना आंसर क्या होगा? एरिया वाला, स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट लक्ष्मण वेस्ट वाल गया, किन्ना? 15। कित्थों? हाउस तो। देन टर्न लेफ्ट 20। फिर किस गया? ईस्ट वाल गया, किन्ना गया? 25। 15 ते 10। ठीक है जी। ते फिर लेफ्ट टर्न लिता ते किन्ना चलिया? 20। किन्ना दूर है? किन्ना दूर है? 10 दा डिस्टेंस है। क्लियर। हाँ जी, की है अगे? embedded figure, find out the alternative figure which contain this। कित्थे मिल रही है? आलो जी, the answer is third option। clear। syllogism, no building is white, all white are orange, some orange are water। नो बिल्डिंग वाटर, बिल्डिंग और वाटर कोई रिलेशन नहीं। ऑरेंज बिल्डिंग वाटर नहीं है, है ना। पूछा क्या? क्या ऑरेंज बिल्डिंग नहीं है? ऑरेंज और बिल्डिंग, क्या कोई भी ऑरेंज बिल्डिंग नहीं है? मुझे नहीं पता, गलत। सम ऑरेंज वाइट, ऑरेंज का कुछ पार्ट वाइट है। सम वाटर बिल्डिंग, क्या वाटर का कुछ पार्ट बिल्डिंग है? ये रहा वाटर, दूर दूर है, गलत। आंसर क्या आएगा? ओनली थर्ड फॉलोस, है ना। आइदर और तो नहीं बन रहा, इन दोनों में आइदर और बन रहा।
आइदर 1 और 4 एंड 3 फॉलोज आना चाहिए, आइदर 1 और 4 एंड क्या आना चाहिए, 3 फॉलोज। पर ऑप्शन हमें क्या कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, तो ध्यान रखना आंसर इज नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा अपना, नन ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट की क्या अपन क्या, आफ्टर रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रेफ्रिजरेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओहो लेटर दसने जिससे दोनों साइड की हो वोवल हो, ए ई एफ। देखो जे मैनू इसी चीज दोनों साइड वोवल दिख गए, मैं आगे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो 5 फ्रेंड्स है, सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है जी। कितने फ्रेंड्स है, 5 फ्रेंड्स है। रेनू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दीक्षा, राइट लेफ्ट 1 2 3। रेनू थर्ड लेफ्ट पे है, ठीक है जी। सीमा इज बिटवीन, सीमा बीच में है। अगर मैं सीमा यहां बनाती हूं तो 6 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, तो बेटर मैं सीमा इत्थे बनावा। सीमा किथे है, सीमा इज बिटवीन विभा एंड दीक्षा। वीना इमीडिएट राइट ते है, वीना बन गया अपना काम। पूछा कि एक्सट्रीम राइट ते कौन है ना। सीरीज की हो रहे थे 1 द क्यूब -1, 2 द क्यूब -1, 3 द क्यूब -1, 4 द क्यूब -1, 5 द क्यूब इत्थे क्या होगा 6 द क्यूब -1, ठीक। नेक्स्ट पूजा मदर है, पूजा मदर है बाय की। महेश ब्रदर है, राजेश हस्बैंड है पूजा के। रितेश ब्रदर है किसका, राजेश का। शीला मदर है रितेश की। शीला क्या लगती है महेश की, क्या बोलोगे, ग्रैंड मदर, ठीक है जी। इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हर बारी आपके पास एक सैटरडे का मॉक टेस्ट होता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं आशीष आज आपके पास फिर से हाजिर हुआ हूं कंप्यूटर के मॉक को लेके। चलिए जानते हैं कि कौन से टाइप के आपके पास क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, क्या है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। जब भी ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए कौन सा लैंग्वेज आप लोग यूज करते हैं, तो आपको आंसर करना है फोर्ट्रन। क्यों फोर्ट्रन यूज करना है? क्योंकि फोर्ट्रन जो थी सबसे पहली लैंग्वेज जो थी वो पर्टिकुलरली साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। तो डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर। यूनिक्स अपने आप में क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब एक विंडो है। जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 आप लोग यूज करते हैं, उसी तरीके से लिनक्स यूनिक्स भी अपने आप में क्या होते हैं, विंडो होते हैं। तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या वेब सर्वर। देखो डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे जनरली आप लोग इसका यूज नहीं करते हैं। जनरली मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते, पर जनरली यूज करते नहीं है। तो यहां पे यूज करते हैं विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 का आप लोग यूज करते हैं, या कोई और विंडो आप लोग यूज करते हैं। जनरली लिनक्स या फिर यूनिक्स, इन दोनों को क्या बोला जाता है, वेब सर्वर बोला जाता है, या फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी कई बार आप लोग इन्हें जानते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, वेब सर्वर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज। तो ये मेरे को लगता है आज की डेट में हर कोई बच्चा इंटरनेट चलाता है, तो ये आपको हमेशा ही पता होना चाहिए कि इंटरनेट के लिए आप लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, बेसिक, कोबोल, जावा या फिर पास्कल। तो यहाँ पे हम सन माइक्रोसॉफ्ट की जावा यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं, जावा लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द लैंग्वेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल की बात करिए, फोर्ट्रन, कोबोल, पास्कल, यहां पे आएगा कोबोल। ठीक है, तो ये आपको यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, लॉजिक गेट्स आर। अब कंप्यूटर में जो भी कोई काम होता है वो लॉजिक से ही होता है। एक पर्टिकुलर आपके पास एंड गेट, नोर गेट, नोट गेट, इस तरीके से ग्लोर गेट होते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया जो वो गेट होते हैं वो क्या होते हैं। आपके पास एक तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, एक तरीके के सर्किट हैं, या सीडी है, या फिर कंप्यूटर गेम। एक्चुअल में लॉजिकल गेट क्या होते हैं, एक तरीके के सर्किट होते हैं जो कि कंप्यूटर क्या हर किसी इलेक्ट्रॉनिक काम में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो होपफुली ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू। अगर 1 किलोबाइट की अगर मैं बात करता हूं तो 1024 केबी के बराबर, बाइट के बराबर आपके पास होता है 1024। ये मेरे को लगता है आप सभी का यहां पे सही आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज जीबी मतलब गीगाबाइट, केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मींस मेगाबाइट, या फिर टीबी। तो आज की डेट में आप लोग टीबी यूज करते हैं, टीबी से भी आगे आप लोग पीबी पेटाबाइट यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, पेटाबाइट आप लोग यूज करते हैं, तो याद रखिएगा टीबी अगर ऑप्शन में तो टीबी नहीं तो पीबी होगा पेटाबाइट। ठीक है, पेटाबाइट आप लोग इस चीज का यहाँ पे यूज करेंगे। डन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग इन अ सॉफ्टवेयर, मतलब अपने सिस्टम में से, अपने सॉफ्टवेयर में से कोड जो भी खराब है, या फिर बग का मतलब होता है कीड़ा, उस कीड़े को निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंप्लीशनिंग, टेस्टिंग, रनिंग, या फिर डीबगिंग। ठीक है, या सॉरी कंपाइलिंग है पहले, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है डीबग करना। डीबग का मतलब होता है कि बग को रिमूव करना, बग को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है जिसका बना बनाया कोड इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है और मैनिपुलेट किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट के लिए। या फिर ओपन सोर्स का मतलब एक और भी होता है जिसको रन करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है CUI। CUI स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम के ये पार्ट होते हैं, एक होता है GUI, एक होता है CUI। तो GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI मींस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इसका आंसर जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, CUI का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस नाम भी होता है, और करेक्ट आपके पास कमांड यूजर इंटरफेस भी हम लोग जानते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आती हैं दो चीजें, एक है CUI और दूसरा है GUI। ठीक है, कैरेक्टर यूजर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, याद रखेंगे, ये पेपर का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं, तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो मॉक टेस्ट है उसका कंप्लीट जो मैथ का पार्ट है उसका सोल्यूशन हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स, पार्सली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। कुछ डिस्टेंस उसने 8 फुट से कवर किया, एंड ऑन बाइसाइकिल एट 16 किलोमीटर पर आवर द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द फुट। देखो, उसने टोटल डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है और टोटल टाइम हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, फिर टोटल उसको 7 घंटे का टाइम लगा। कुछ पार्ट उसने फुट से कवर किया। अगर हम कहें कि फुट से उसने x किलोमीटर कवर किया है, ठीक है, तो कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो जो बाकी का जो डिस्टेंस बचेगा 80 माइनस x, वो डिस्टेंस उसने साइकिल से कवर किया होगा डिवाइड बाय 16, और टोटल टाइम किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड हमने यूज किया। अगर यहां से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 80 माइनस x इज इक्वल टू 7 इंटू 60।
ठीक है, अब यहां से अगर सॉल्व करेंगे, देखो ये एलसीएम तो कैंसिल ही हो चुका है आपका, तो 2x में से x गया, कितना बचेगा, x बचेगा सिर्फ, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 112 माइनस 80, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 32 आएगा, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है। और इसमें आप टाइम को भी x मान सकते हैं, आप जैसे मर्जी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, ए जार फुल ऑफ विस्की कंटेन्स 40% अल्कोहल, तो 40% अल्कोहल है, ए पार्ट ऑफ दिस इज विस्की इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंटेन 19% अल्कोहल, एंड नाउ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल वाज फाउंड टू बी 26%, और अब उसमें कितना है, 26%, लगा दो एलिगेशन, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर हम बात करें 40 में से 26 किया तो 7 और 14 और ये 7, तो मतलब ये किस रेशो में है, 1:2 में है, किस रेशो में है, 1:2 में है। द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड, ठीक है, 1:1 + 2 टोटल 3 है, तो कितना रिप्लेस किया गया, उसमें 2 रिप्लेस किया गया आउट ऑफ 3, तो 2/3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साइंस क्लासेस ए बी सी टेक लाइफ साइंस टेस्ट, ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है आपके अलग अलग एग्जाम्स में, इसका आंसर याद हो चुका है, बहुत बार मैं करवा चुका हूं। इसका आंसर क्या है, 81.5 है, मुझे इसका आंसर याद हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों को भी मैं पहले भी बहुत बार करवा चुका हूं ये क्वेश्चन, अलग अलग आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी बहुत बार आ चुका है ये। ए मिल्कमैन बाइज 2 cows at 3000, he sells the first cow at a profit of 22%, पहले को 22% प्रॉफिट, एंड द सेकंड एट ए लॉस ऑफ 8%, लॉस है तो -8। What is the SP of the second cow if in the whole transaction there is no profit no loss, मतलब 0, लगा दो एलिगेशन। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और ये 22 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो जो रेशो बना सीपी का वो 4:11 बना, 4:11, मतलब दोनों कितने के हैं, 15, और 15 किसके इक्वल है, 3000 के इक्वल है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो ये 800 आ जाएगा और ये 2200 आ जाएगा। उसने पूछा क्या था, वट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड हॉर्स, सेकंड का प्राइस क्या होगा, देखो 2200 रुपए की चीज थी, उसके ऊपर 8% का लॉस लिया तो 92% में सेल किया गया, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, क्योंकि देखो वैसे भी बाकी सारे ऑप्शन तो आपके बड़े हैं, प्रॉफिट हुआ इन सब पे तो, बट एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉस हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI ऑन 6500 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इन 2 years। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है 6500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 0.16% का यहां डिफरेंस आता है, 0.16% का, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल हो गई, 4 से डिवाइड करो 25, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर 5 से और डिवाइड करना है तो 13 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपका 52 डिवाइड बाय 5, 52 डिवाइड बाय 5 मतलब 10.4। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किरण कैन डू ए वर्क इन 20 days while करण कैन डू द सेम वर्क इन 25 days। किरण किसी काम को अगर 20 दिन में करती है तो करण उसी काम को 25 डेज में पूरा करता है, ठीक है। दे स्टार्ट द वर्क जॉइंटली, फ्यू डेज लेटर सुमन ऑल्सो ज्वाइन देम एंड दस ऑल ऑफ देम कंप्लीट द होल वर्क इन 10 days। फिर और तीनों जब अगर काम करते तो जो पूरा काम है वो 10 दिन में पूरा होता है। एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, यहां से अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 100, किरण की एफिशिएंसी 5 और करण की एफिशिएंसी 4। देखो इन्होंने 9 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम किया तो मतलब 90 काम हो गए, ठीक है। और सुमन ने 10 काम, ठीक है, कितने की एफिशिएंसी से किए कि वो 10 ही दिन में हो, तो सुमन की एफिशिएंसी क्या है 1, तो मतलब अगर वो अकेली करेगी तो पूरा काम कितने डेज में कंप्लीट होगा, 100 डेज में। या फिर अगर इनके एफिशिएंसी के रेशो की बात करें तो एफिशिएंसी का रेशो 5:1 आ गया। तो उसने पूछा था व्हाट इज द शेयर ऑफ सुमन, 1000 रुपए। तो टोटल देखो ये किसके इक्वल है, 10 यूनिट की वैल्यू है आपकी ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी
100 हो जाएगी। तो सुमन को कितने रुपए मिलेंगे? सुमन को सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए किरण लेगी, 400 रुपए करण लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन सैंपल देयर इज 20% इंप्योरिटी। अब देखो, अगर 50 लीटर है टोटल, अगर 20% इंप्योरिटी है तो 80% क्या होगा? प्योर होगा। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो ये 10 केजी और 10 लीटर और ये कितना बनेगा? 40 लीटर बनेगा। उसके बाद हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू मेक इट 5%। मैं कहता हूं कि चलो ये कितना ऐड करेगा? ये x ऐड करेगा, और ये तो आपका कितना रहा? 10 रहा। अगर इम्प्योरिटी आपकी 5% है तो बाकी कितना होगा? 95%। मतलब आपका 19:1 के रेशो में आ जाएगा, ठीक है। 19 और 1 के रेशो में। देखो अब रेशो के हिसाब से तो एक की कीमत 10 है, तो 19 की कीमत कितनी होगी? 190 होगी। और 190 कब होगा? जब x की वैल्यू क्या हो? 150 हो। जब x की वैल्यू क्या हो? 150 हो। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। चलो उसके बाद क्या कह रहा है? जिमी इज नाउ 12 years यंगर देन महेश। जिमी और महेश, अगर ये x है तो महेश कितने का हो जाएगा? x + 12 का हो जाएगा, ठीक है। इफ 9 years फ्रॉम नाउ महेश विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज जिमी। अगर आज से 9 साल बाद ये x + 9 है तो ये x + 21 हो जाएगा, ठीक है। और महेश डबल है तो इसकी एज को हम डबल कर देते हैं। तो सॉल्व करो, 2x + 18 = x + 21 होगा। तो भैया यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो जिमी की एज कितनी है? 3। हाउ ओल्ड विल बी जिमी बी इन 4 years? तो अगले 4 साल में वो कितना हो जाएगा? 7 साल का हो जाएगा। 3 साल का भी है, अगले 4 साल में 7 साल का हो जाएगा। 10 year hence the respective ratio between Simi age and Niti's age will be 7:9। अब देखो ये 7x और 9x का रेशो है, कब? आज से 10 साल पहले। तो आज के दिन रेशो क्या होगा? क्या दोनों में से अगर -10 कर दें तो आपका ये आ जाएगा। 2 years ago the respective ratio between Simi and Niti is 1:3। आज से 2 साल पहले, और तो मतलब और इसमें से क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये रेशो क्या है? 1:3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से। इफ अभय इज 4 years older to his sister नीति, ठीक है, वो अभय अपनी बहन से 4 साल बड़ा है, तो अभय की परसेंटेज बताओ। एक तो ये तरीका था। दूसरा मैं कहता हूं कि पहले रेशो क्या था? पास्ट का रेशो है 1:3, फ्यूचर का रेशो है 7:9। देखो ये कितना बड़ा? 6। ये भी कितना बड़ा? 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या है? टोटल 12। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये 2 और ये 6, ये 2 साल पहले का था। तो प्रेजेंट क्या है उनका? 4 और 10 है। प्रेजेंट उनका क्या है? 4 और 10 है, ठीक है। 2 years ago उसने बोला था ना हमसे, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 8, ठीक है। और ये नीति की एज के रिस्पेक्ट में बोला गया है। तो अभय की एज कितनी हो जाएगी? जो 4 साल बड़ा है, 8 + 4 12 साल हो जाएगा। ये इक्वेशन ये बनेगी, और डायरेक्ट रेशियो से कैसे होगा वो भी आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 3:2। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम 450। एरिया क्या होता है? एरिया किसके इक्वल होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। 15 से डिवाइड किया 30, 5 से डिवाइड किया 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 6 × 2 12। x की वैल्यू क्या हो गई? 12। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स 5x है, तो 5 × 12 60। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। बस स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए, फिर क्वेश्चन भाग भाग के होंगे। ए ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन ए कार, ठीक है। ट्रेन और कार की स्पीड की बात की गई है कि अगर ये किस रेशियो में है? 3:2 में। ये 3x, तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बोथ स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी
which is 300 किलोमीटर अवे एट द सेम टाइम पर चली और सेम टाइम पर पहुंची, ठीक है, तो दोनों ने जो टोटल टाइम लिया वो आपका क्या है, सेम है, ठीक है। ऑन द वे हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट 88 मिनट, बट रास्ते में ट्रेन ने 88 मिनट रुका है तो टाइम सेम नहीं है। व्हाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अब देखो बट डिस्टेंस दोनों ने सेम कवर किया, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अगर ट्रेन और कार की स्पीड का रेशो 3:2 है, अगर इनकी स्पीड का रेशो 3:2 है तो टाइम का रेशो क्या होगा, 2:3 होगा। टाइम का रेशो क्या होगा, 2:3। 1 यूनिट की वैल्यू 88 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 88। तो ट्रेन ने भी डिस्टेंस तो कवर किया था 330 डिवाइड बाय 2 × 88 और ऊपर 60 चला जाएगा क्योंकि इसको आवर्स में भी चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम किस में था, मिनट्स में था। करें इसको सोल्व, अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो 8 और ये बन जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद ये बनेगा आपका 6 × 3 18, 4 से डिवाइड कर ले 2 और 4 इसको 15 पे डिवाइड कर देगा, फिर इसको 15 पे डिवाइड कर देगा, 225 बटा 2, 225 डिवाइड बाय 2, मतलब ऑप्शन सी 112.5, ऑप्शन सी। क्या कह रहा है, देयर आर मेनी नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 14, 21, 24 and 28 and 36 leaves a remainder of 2, के 2 रिमाइंडर बचता है। the least possible values of such number is, ठीक है। अब देखो किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचता है, मैं चाहता हूं कि भाई रिमाइंडर ना बचे, ठीक है, रिमाइंडर ना बचे या पूरे डिवाइड हो। अब पूरे डिवाइड हो तो सब में से क्या करो, 2 माइनस कर दो, तो 252, 248, 500 और 504, मतलब ये नंबर हैं। अगर इन नंबर्स को हम इनसे पूरा इनको डिवाइड करें तो ये पूरे डिवाइड होने चाहिए आपके। देखो अब 21, 24, 28 और 36 9 और 4, मतलब इस पे 9 और 4 का डिवीजन रूल अप्लाई होना चाहिए। तो देखो इस पे तो 9 का अप्लाई होता नहीं है, 8 और 10 14, इस पे भी अप्लाई नहीं होता, सिर्फ 2 ही नंबर बचे, 252, 5 2 7 और दोनों, और 5 और 4, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि वो नंबर आपका 21 से डिवाइड होता है, दैट मीन 7 से भी डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करें 7 या 21, बचेगा 4, 42 डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो किससे चेक करें, 8 से डिवाइड कर ले, 8 से 48 डिवाइड होगा, 8 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन उठाओ और उनको एलिमिनेट करो, बस, और कुछ नहीं करना। The sides of a triangle are 16, 12 and 20. Find the area. देखो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। इन दोनों को ऐड करो तो 400 बन रहा है, मतलब मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये साइड 16 और ये 12 हो सकती है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, सॉरी 12 है यहाँ पे, 12 इंटू 8 96, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और वैसे आप इस पे हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते थे अगर आपको ये ट्रिपलेट नजर नहीं आता है तो। A girl goes to her school from her house at a speed of 6 km per hour, return at a speed of 4 km per hour। 6 की स्पीड से गई, 4 की स्पीड से वापस आई। If she takes 10 hours in going and coming, टोटल टाइम की बात की गई, तो पूछा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम, 10 से 10 कैंसिल, तो 24 आपका आंसर। लो जी, हो गया ये भी क्वेश्चन। चलो जी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, बस डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट कितने अच्छे से और कितनी जल्दी क्लियर हो रही है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to the English section by Piyush. So I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher.
सो गाइज आप इंग्लिश के सेक्शन पे आ गए हैं एंड आई होप कि आप लोग सब ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हैं सब लोगों ने मॉक अटेम्प्ट किया था, राइट? सो चेक दिस आउट कि हमारे पास मॉक के सॉल्यूशंस में क्या आता है आगे। सेंटेंस आपको बोल्ड में दिया हुआ, द फास्ट ट्रेन केम अ हॉल्ट टू बिफोर। ऑफ कोर्स अगर आपको टू लगाना है, टू का इटसेल्फ मीनिंग हो जाएगा, टू के बाद जो भी वर्ब चलेगा इट हैज टू बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इट शुड बी केम टू अ हॉल्ट हो जाएगा, राइट? तो अगर आप कुछ भी लगाते हैं, लेट्स से टू के बाद कोई वर्ब आ तो नहीं रहा है, केम बिफोर नहीं आएगा, केम टू अ हॉल्ट, केम टू हॉल्ट्स नहीं, तो आंसर इज केम टू अ हॉल्ट, रुक गई थी, राइट? द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट। मूविंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, डू यू नो हु शी इज गोइंग टू मैरी? अच्छा, वो कह रहा है क्या आप जानते हैं कि वो किसको शादी करना चाह रही है या किसको शादी करने वाली है? पहली बात तो लगेगा हुम, तो देखिए हुम कहां कहां है, ये रहा, राइट? अब यहां पे हुम लग गया तो एक में ही आंसर है। अब कहते हैं हु इज शी गोइंग टू मैरी, नहीं तो होगा हु का मतलब तो हो जाएगा ना कि वो कौन है, इट शुड बी किससे, राइट? मूविंग ऑन फर्दर, आई टुक द साइकिल विच ही हैज बॉट येस्टरडे। अब देखो जो कल खरीद के आया था, तो विच ही हैज तो नहीं आएगा बिल्कुल भी, विच ही बॉट येस्टरडे, अच्छा ही हैड बॉट येस्टरडे, ठीक है, दैट विच ही हैड बॉट येस्टरडे, दैट विच इकट्ठे तो नहीं आएगा, तो बनता क्या, दो दैट बनते हैं। आपके अकॉर्डिंग कल साइकिल खरीदा था कि कल साइकिल खरीद चुका था? सर मैंने कल साइकिल खरीदा था, नॉट मैं कल खरीद चुका था, तो विच ही बॉट येस्टरडे हो जाएगा। Next, even the people in authority agree that corruption has become today's order। कहता इवन जो ये लोग है ना, ये भी जान गए हैं जो करप्शन है ना वो आज का ऑर्डर बन गया है, तो इट शुड बी टुडेज ऑर्डर, नहीं द ऑर्डर ऑफ द डे। अब क्या आया है, ये इडियम दिया है आपको इटैलिक्स में, आपको इसका मीनिंग बताना है। इट सेज harassed by repeated acts of injustice he decided to put his foot down। अब देखो हरास हो रहा था, पुट हिज फुट डाउन का मतलब क्या हो गया कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, बहुत सारा इनजस्टिस हो रहा है, रिजाइन, नॉट टू यील्ड, विथड्रॉ, एक्सेप्ट द प्रपोजल अनकंडीशनली। नॉट टू यील्ड, मैंने तो काम करना ही नहीं है। एट क्रिसमस इवन द एल्डरली फादर्स पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड का मतलब तो आपने पता होगा, है ना? वो कहते हैं ना भाई आई हैव पेंटेड द टाउन रेड, मतलब कि मैंने उसको जिस तरफ से कहते हैं ना भाई जोश के साथ उत्साह के साथ भर दिया, मजा आ गया, दैट इज कॉल्ड लाइवली टाइम, हैव अ लाइवली टाइम। ऑपोजिट बताना है आपको, देयर आर मेनी एनेक्डोट्स अबाउट हिज सिस्टर हु इज एन इंपेरियस पर्सनालिटी। उसके बारे में बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं जो कि एक इंपेरियस पर्सनालिटी है, तो इसका जो ऑपोजिट बताना है आपको वो बताना है। इंपेरियस तो बहुत जानी मानी कह सकते हैं, है ना, प्योर मतलब लाइवली, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सबमिसिव, राइट? नेक्स्ट, दो अवेयर ऑफ हिज क्राइम्स ही रिमेन्ड इम्पेनिटेंट, राइट? कहता हालांकि अवेयर थे उसके क्राइम्स के बारे में लेकिन वो इम्पेनिटेंट रहा थ्रू आउट, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपको, फिर से ऑपोजिट, रिपेंटेंट, राइट? फॉलोड बाय व्हाट वी हैव इज, हैव यू बीन टू द सिनेमा लेटली, लेटली रिसेंटली आप क्या सिनेमा गए हैं? फिर एडजेक्टिव वर्ब, द बॉयज ऑलवेज ग्रीट इन अ फ्रेंडली मैनर, जहां पर फ्रेंडली एडजेक्टिव और ये नाउन है, तो ओवरऑल ये एडवर्ब बन जाएगा इन अ फ्रेंडली मैनर। एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, सनोरस, द वर्ड इज सनोरस, सनोरस का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना, द एंटोनिम टू दिस इज मफल्ड, उसका ऑपोजिट बताना था विच इज मफल्ड। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ओमेनस, ऑकुलेट, पैसिफिक, सैटर्न। अब यार ये देखकर पता लग गया होगा आपको कि सर बाकी का मतलब पता हो ना पता हो, लेकिन इसकी स्पेलिंग तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब आपको अंडरलाइन वर्ड्स को रिप्लेस करना है। यू स्टार्ट योर मॉर्निंग वॉक, आई विल ज्वाइन यू सून। कहता अब देखो, कहता आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करिए, मैं आपको जल्दी ज्वाइन करूंगा, तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे मतलब हैव यू कॉट अप विद हिम, कैच अप का मतलब हो जाएगा आप उसको मिलेंगे। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है, आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी नो सूनर एज आई वेक अप, इट शुड बी एज सून एज आई वेक अप। पीपल हु गेट अप लेट इन द मॉर्निंग मे नॉट बी डूइंग दिस ऑन पर्पस। कहता जो लोग लेट उठते हैं वो शायद इसको पर्पस पे ना कर रहे हो, मेक सेंस। वी एवरी डे नॉट नीड, वी नीड नॉट हो जाएगा, नीड नॉट, फॉलोड बाय आई एम गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग नॉट यूज्ड, आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा, द आंसर इज बी बॉय।
करेक्ट स्पेलिंग वाला देखना है, टेम्परामेंट, टेरेस्ट्रियल, टेरिटोरियल, ट्यूशन। भाई वही बात होगी जैसे पैसिफिक आया था वैसे ही आया, भाई ट्यूशन के स्पेलिंग तो सबको पता है। फॉलोड बाय ऑल द बेस्ट। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू। एंजॉय।